اس احتجاج کے حوالے سے تو آپ احتجاج کو لیڈ کر رہے ہیں؟ ہم احتجاج میں شامل ہیں اور اس وقت تک یہ احتجاج جاری رہے گا جب تک یہ جاری حکومت گرا نہیں جاتی۔ تو جو آج احتجاج پہ نکلے ہیں اس سے حکومت گر سکتی ہے، کوئی خطرہ ہے آپ فیل کرتے ہیں؟ بالکل گرے گی۔ ان کی نوم میں اخلاقی وہ ہے، انہیں خود بھی پتہ ہے، ان کی بہو بیٹیوں کو پتہ ہے، ان کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ وہ دوسرے کا مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے۔ 9 مئی میں پارلیمنٹ کے ممبران کو 10 سال جیل اس لیے دی گئی کہ آپ نے دہشت گردی کی۔ میں اس جج سے پوچھتا تھا، میں نے کہا اس جج سے یہ پوچھو کہ ٹھیک ہے آپ نے 9 مئی میں اس کے باوجود کہ عمران خان نے جین سے پیغام بھیجا تھا کہ کمیٹی بنا دو، تحقیقات کر لو، جو مجرم ہے جو چور کی سزا ان کو دے دو، یہ گڑبڑ نہ کرو۔ بہرحال انہوں نے کر دیا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات اس لائق تھی تو پھر 7 مئی یا 8 جو ہمارے فروری کے الیکشن ہے، 9 مئی کے بعد زر اور زور کی بنیاد کے بندوق کے زور پہ 25 کروڑ پاکستانی کو دہشت زدہ کر کے دہشت گردی کے ذریعے شہباز اینڈ کمپنی نے پاکستان پہ قبضہ کیا۔ ان کی سزا پھر کیا ہوگی؟ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جو آدمی آئین کو چھیڑے گا، اس کو معطل کرے گا، اس کو ایبروگیٹ کرے گا، وہ کیپٹل سزا کا مستحق ہے۔ اور جو لوگ فوجی ہوں یا سیاسی ہوں، وکیل ہوں یا عام آدمی ہوں، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سب آئین کے غدار ہیں۔ ابھی یہ ہر اس پاکستانی کا، آپ سمیت ہر اس پاکستانی جرنیل کا، ہر اس پاکستانی مرد عورت کا، ہر اس پاکستانی جج کا، ہر اس پاکستانی جرنلسٹ کا جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ پاکستان پھلے پھولے۔ آج کے دن اگر ہم نہ نکلے، ہم نے آئین کا دفاع نہ کیا، تو جس انداز میں ہمارے یہ جاہل حکومتیں باجوڑ سے لے کر گوادر تک، گوادر سے لے کر چمن تک اپنے عوام کے خلاف چڑھ دوڑی ہیں، اس سے خدا نخواستہ ایک بڑی خطرناک خانہ جنگی شروع ہوگی اور وہ پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دے گی۔ پاکستان کے عوام بلوچ ہوں یا سندھی یا پشتون یا پنجابی، نہ کسی سے بھیک مانگنے آئے ہیں، نہ کسی سے خیرات مانگنے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، دنیا جان کی نعمتیں۔ قرآن کریم کی سورہ رحمان میں اللہ پاک انسان کو اپنی ربوبیت کے وہ بتا رہا ہے، اور یہ میں نے آپ کے لیے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو کچھ نعمتیں سورہ رحمان میں بیان ہوئی ہیں وہ ہمارے وطن میں ہے۔ پھر لوگ کیوں بھوکوں مر رہے ہیں؟ پھر کیوں 15 لاکھ انسان غربت کے نیچے سے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل نہیں ہونے دی۔ پاکستان اب بھی، میں آج ان سے لڑا تھا، آپ کی پارٹی کے قبرین سے میں لڑا تھا، میں نے کہا آپ کی تعداد 93 تھی، اب آپ کی تعداد 75 ہے۔ کیوں اسپیکر سے نہیں ملتے؟ کہ جب تک تم ان قومی اسمبلی کی ممبران سینیٹرز کو، ہماری بہنیں 3 سال سے یہاں 8 گھنٹے کھڑی رہتی ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران پہ پسینے میں شرابور ہوتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ اسپیکر اگر کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، چیئرمین سینٹ اگر کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے، اسے اس سپرنٹینڈنٹ جیل کو قومی اسمبلی میں بلانا چاہیے۔ ساری قومی اسمبلی کو کمیٹی بنا کے اس پریویلیج پہ اس وقت تک بحث کی جائے جب تک ان کی پارٹی عمران خان کے خاندان کے لوگ باقاعدہ اجازت ان کو نہیں ملتی کہ اپنے لیڈر سے ملیں۔ اس وقت تک تحریک انصاف کے لوگوں کو اسپیکر کو اسمبلی چلنے نہیں دینی چاہیے۔ اگر یہ عمران خان کو نکالنا چاہتے ہیں، اگر یہ عمران خان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، ڈوگر صاحب شریف تو ممبر نہیں، باقی جو ہمارے ممبر ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان آزاد ہو
तो उसको वाहिद तरीका ये है कि हम स्पीकर के सामने खड़े हों कि हम 1 मिनट के लिए असम्बली चलने नहीं देंगे जब तक आप कौमी असम्बली के मेंबरान को ये जो कर्नल के इमा पे सुपरडेंट रोकता है इसको नौकरी से नहीं निकालते। और जब आप कौमी असम्बली के मेंबरान डोगर साहब समेत ये इनका प्रिविलेज है, दे कैन इंस्पेक्ट एनी प्रिजन। अभी वो खड़े रहते हैं, कोई मुलाकात नहीं देता, डोगर भी लगा हुआ है, तनख्वाह ले रहा है, मुराद ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं और अपने लीडर के मुखालिफ खड़े नहीं करते जी। मारा गया था सर फाड़े, शर्ट फाड़ी। महमूद खान साहब कंप्लीट करें। चंगेज काकड़ साहब का भी बाजू टूटा हुआ है उनका। हम इस तो यानी वो बदअखलाक लोग, उन्होंने आपका मैंडेट चोरी किया। पाकिस्तान में दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट एक असम्बली का सिंबल छीन, एक पार्टी का सिंबल छीन ले। इमरान खान को पाकिस्तान में किसी भी हलके में खड़े होने नहीं दिया गया। ये पाकिस्तान है। ये तो हिम्मत की इन कारकुनों ने कि 200 सिंबल्स पे इलेक्शन लड़के तमाम पाकिस्तान के मैंडेट को अपने हक में वो कर दिया। अब मेहरबानी करें। अच्छा महमूद खान साहब ये बताइएगा कि ये जो तहरीक है चल रही है, लोग सड़कों के ऊपर हैं और शहबाज एंड कंपनी का आप नाम ले रहे थे, तो किसने आपसे रब्ता किया कि मुज़ाकरात से कोई रास्ता निकल सकता है? कोई रब्ता हुआ आपका भी? मुज़ाकरात देखे, मैं इमरान खान से भी मैं मिला नहीं हूँ उनसे, नवाज शरीफ से भी करूँगा। बाबा जो कुछ हुआ, आए हम सब कुरान पे हाथ रख के, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के ये फैसला करें कि हमने इस मुल्क में जमहूरियत को पलने फूलने देना है। हमने इस मुल्क को एक ऐसे इलेक्शन के ज़रिए, एक ऐसे पार्लियामेंट जो ताकत का सरचश्मा हो, जो कौमी तमाम पॉलिसियों का सरचश्मा हो, खारिजी दाखिला सियासत का, और आइन ने जो दायरा दिया है जुडिशरी को, अफवाज को, हर एक उसमें दायरे में रहें। और ये बड़ी गुनाह की बात है। तारीख इंसाफ के बाद लोग, दूसरी पार्टियों के लोग बात कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। ये आइन की रूह से गुनाह है। आइन की रूह से ये बिल्कुल क्या कहते हैं, ट्रीजन है। हाँ, उनसे बात होगी तो इस पे बात होगी जी, मेहरबानी करके अपनी हदूद में जाइए। हम सिर्फ ये चाहेंगे, शायद मेरा शक है, आई डोंट नो, ये मेरी गट्स फीलिंग है, शायद पाकिस्तान की जमहूरी पार्टियां इमरान खान से ये गारंटी चाहती हैं कि परसिक्यूशन नहीं होगी, एक दूसरे की परसिक्यूशन नहीं होगी। अगर इस पे हम राज़ी हो जाएं, इमरान खान से मिन्नत कर देंगे कि बाबा ठीक है, प्रोसिक्यूट नहीं करते हैं, तो आराम से, इज़्ज़त से, ये जो बात कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से अगर आपने बात करनी है, डू अपॉलॉजी। आज इमरान आधे घंटे में निकल आ सकते, जी सुबह तकरीबन अभी आ सकते एक आधे घंटे में। अगर वो ये कह दे कि जो शहबाज ड्यूटी कर रहा है ये मैं करूँगा, वो आके प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो आके प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ऐसी प्रीमियरशिप क्या करनी है आपने? किसी एक स्पीकर कर्नल का जवाब नहीं दे सकता। कर्नल कौन होता है? आप कौमी असम्बली के मेंबर हैं, गिलानी साहब सेनेट के चेयरमैन हैं। इन दोनों को इस सुब्रमण्यम जेल को बुलाना चाहिए। कौमी असम्बली को सारी को कमेटी डिक्लेयर करके इस प्रिविलेज पे तमाम दिन बातें होनी चाहिए, और ये हुक्म मिलना चाहिए स्पीकर की तरफ से कि हर जो भी आप लिस्ट दें, आपकी अकाबरीन जाएँ, अपने लीडर से बने, उनके बहने मिले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अजीब बात है, 10-10 घंटे हम खड़े रहे दुनिया में कहीं भी, चाहे खुदा न खास्ता कोई ख़तरनाक कातिल हो, ड्रग ट्रैफिकर हो, फलाना हो, उसकी मुलाकात की पाबंदी नहीं। जी अच्छा ये बताइए, महमूद खान चकदेई साहब ये बताइएगा, मुतअद्दिद कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, उनके कोई खातिर खा नताइज नहीं आए। अभी एक हालिया कुल जमाती कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके हवाले से क्या खातिर खा नताइज आए? इसके साथ हुकूमत पहले दिन से ये कहती रही है कि ये एहतजाज फ्लॉप है, लेकिन आज एहतजाज जब हो चुका है तो पीटीआई के जो कारकुन हैं वो सोशल मीडिया पे अपना इज़हार कर रहे हैं कि ये एहतजाज फ्लॉप है। बलूचिस्तान के तमाम पश्तून इलाकों में, जोब में, लोरलाई में, दुकी में, चमन में, पशीन में,
तहरीक इंसाफ और पख्तूनख्वा मिले पार्टी और लोगों के हज़ारों लोगों ने बड़ी बेहतरीन वो किया। खचक इलाके में बिल्कुल इंतहा नहीं थी आवाम की। बात यह है, मसला ये है इस हुकूमत पे या हमारी मुखालिफिन पे तारीख तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इसलिए भारी पड़ा है कि ये माफ़ी चाहता हूँ, कोई बुरा ना माने, कि माजी में जितने भी इत्तेहाद बने हैं वो एजेंसियों के आशीर्वाद से बने। ये वाहिद इत्तेहाद है जो एजेंसियों के आशीर्वाद से नहीं, अपनी आवाम की मर्ज़ी और अपनी आवाम, इसलिए उन पे बोझ है। आज आप हमें इसकी रबरी से निकालें, किसी उनके सोने मुंडे को हवाले कर दें, सब कुछ हो जाए। सर ये बताइएगा, APC के थ्रू आपने एक मुतालबा किया था कि आर्मी चीफ साहब ब्रीफिंग दे आके कि अमरीकी सदर से उनकी क्या बातचीत हुई, उस मुलाकात का अहवाल बताएं। मैंने नहीं कहा था, APC का सर आलामिया था, उसमें पॉइंट था। देखिए APC हुई कल नहीं परसों जी, तमाम ज़िंदगी के तमाम उसमें लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। बेहतरीन APC हुई, करोड़ों इंसानों ने वो देखी डायरेक्ट। 4 करोड़ से ऊपर इंसानों ने आपके अकाबरीन की बातें सुनी और सब इस बात पर मुतफिक थे कि यह आइन की बालादस्ती होगी, जमहूरी पाकिस्तान होगा। हम क्या कर रहे हैं? हमारा ये नहीं खुदा न खास्ता कि इमरान की बहनें या राजा साहब या तहरीक इंसाफ के हमारे नुमाइंदे ये चाहते हैं कि हम खुदा न खास्ता किसी को माँ बाप की गालियाँ दें या हम खुदा न खास्ता लोगों को पत्थर मारे, डंडे मारे। हम चाहते हैं कि नया पाकिस्तान, एक जमहूरी पाकिस्तान जिसमें गरीब की रोटी का बंदोबस्त हो, जिसमें गरीब की इज़्ज़त का बंदोबस्त हो, जिसमें आइन बालादस्त हो। जो पार्टी जीते वो हुक्मरानी करे 5 साल आगे देखिए। सर ये जो मुतालबा था, क्या आप उससे दस्तबरदार हो चुके हैं? क्योंकि आलामिया में ये अनाउंस किया गया था कि अमरीकी सदर से जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब की, उस हवाले से आपने कहा कि हमें ब्रीफिंग दी जाए, आर्मी चीफ को ब्रीफिंग देनी चाहिए अपोजिशन जमातों को। तो अभी आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। मैं आप सुन क्यों गलत कर रहे हैं। ये एक किसी और आदमी ने कहा था, फिर उसने कहा था हमारे तर्जुमान ने, मुस्तफा साहब ने, जिसने भी कहा था ये हक बनता है हमारा, ये हक बनता है जी। तो बात ये है कि पॉलिसियाँ कौन बनाएगा? दुख होता है इस बात का। ये नहीं कि मैं इनसे बड़ा आदमी हूँ या वो करता हूँ। ये नहीं चलेगा कि आपको यूं करके GHQ बुलाया जाए और अब जाके कतार में बैठ जाएं सारे, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर फलाना, फिर खाक वज़ीर अला पर, फिर खाक वज़ीर क्या ताल्लुक़ है वहाँ? व्हाई डू यू गो देयर? मैं किसी का नाम नहीं लेता, आर्मी चीफ हमारा आर्मी चीफ है। जब तक वो आइन के उस फ्रेम में रहेगा हम उसको सलूट करेंगे। जो जज अपने फ्रेम में रहेगा हम उसका एहतराम करें। जो जर्नलिस्ट फ्रेम में रहेगा हम उसको, लेकिन जो भी अगर कोई वज़ीर आज़म पागल बनता है, मर्द मोमिन बन के डिक्टेटर बनना चाहता है, हम उसकी मुखालिफत करें। अगर कोई जज जुडिशल इक्विटिज़म के ज़रिए चल दौड़ता है हर जगह, सो मोटो एक्शन फलाना, हम उसकी मुखालिफत करें। अगर कोई जर्नल उस फ्रेम से निकलता है हम उसे कह देंगे जी जर्नल साहब प्लीज़। सर मोहसिन नकवी साहब की बात गश्त है कि उन्हें भी वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है शहबाज शरीफ को हटाने के बाद। किनको? मोहसिन नकवी साहब का नाम आ रहा है। नहीं, ये नहीं, तो आप कबूल करेंगे उन्हें? ये तजर्बा नहीं है। इलेक्टेड वोट से, मुंतखब पार्लियामेंट से पाकिस्तान की अक़लियतों का अगर कोई सिख बनता है हम सपोर्ट करेंगे। अगर कि कोई हिंदू बनता है, लेकिन वोट से, पाकिस्तान के वोट से, पार्लियामेंट के वोट से, कोई हमें नहीं बताएगा वो कौन होते वज़ीर आज़म फलाना, आप कौन होते? पार्लियामेंट बनाएगी, पार्लियामेंट भी इलेक्टेड पार्लियामेंट। ये तमाशा है। 9 मई खुद इमरान खान ने बार बार कहा जेल से कि बाबा बस ठीक है, आप जो कुछ कहते हैं, कमेटी बनाए, कमीशन बनाए, ओपन अदालत में लोगों को देख, जिसकी कोई सज़ा है उसको सज़ा दे। हाँ बस बिस्मिल्लाह चल दौड़े। कोर कमांडर का घर न मेरा घर है, कोर कमांडर न बीबी का घर है। कोर कमांडर का दरवाज़ा खुला क्यों था? कैसे हज़ारों
औरतों और बच्चों को छोड़ दिया गया कि तमाशे बनाओ। बाबा हम उसे भी कहते हैं बाबा जो हुआ है सो हुआ है। हम सब आर्मी, जजेस, जुडिशरी, पार्लियामेंटेरियंस, एक पार्टी दूसरी पार्टी, हमने तौबतुन नसूख करनी है, खुदा को हाजिर और नाज़िर जान कर ये फैसला करना है कि हमने ना एक दूसरे की बेइज्जती करनी है, ना अभी तारीख चलेगी इंशाअल्लाह डंके की चोट पे चलेगी। हम वाज़े कहना चाहते हैं, हम तारीख चलाएंगे, ना हम किसी को पत्थर मारेंगे, ना हम किसी को गाली देंगे, ना हम किसी को बुरा भला कहेंगे। ये हमारा जमहूरी हक है, और अगर वो हमें नहीं छोड़ते बस यूँ हम बैठ के या दरख्त के साए में या कहीं अपनी मुरली बजाएंगे, देखा जाए। जी सर, आखिर में सर ये बताइएगा कि इमरान खान साहब ने अभी गुज़िश्ता हफ्ते को उन्होंने कहा कि जिन सीटों पे नाअहली हुई है या सज़ा याफ्ता हुए हैं वहाँ इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा, पीटीआई कोई कैंडिडेट ना खड़ा करे। आप नहीं समझते कि ये जो सीटें इमरान खान साहब की थी, पीटीआई की थी, उसका बाइकाट करने से पहले भी ये 75 के लोग खड़े हैं। मेरा मतलब ये है कि आप क्या समझते हैं कि उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, अपनी सीटें वापस लेनी चाहिए या बाइकाट करना चाहिए? देखिए बाइकाट बात यह है कि आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं। जब आप एक पार्टी से आपका उसका सिंबल छीन लेते हैं, जब एक पार्टी के लीडर को आप तमाम पाकिस्तान में किसी भी हल्के में उसके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं करते, जब आप मैंडेट चोरी करेंगे तो फिर लोगों के पास तक क्या रह जाएगा? आप इस मुल्क को डुबोना चाहते हैं, हम आपको ये इजाज़त नहीं देंगे। अब जो आप छड़ दौड़े हैं वो खैबर से लेकर गवादर तक सारा पाकिस्तान कौन मर रहे हैं? अगर एफसी का बंदा मर रहा है आपका बच्चा है, अगर वो किसी को मार रहा है वो आपका बच्चा है। क्या अब इस वक्त जब ये बात कर रहे हैं कम से कम 15 आदमी खून में लथपथ, या फौजी लथपथ होगा या कोई बलोच या कोई पश्तून, किस लिए? वाह, क्यों हम से मार रहे हैं? अगर हमारे उसमें खटक इलाके में खुद अपनी पाकिस्तान की वो है 11-12 मील का वो एल्यूमिनियम यूरानियम का 1 किलो $4 लाख, और खटक आपसे कहते हैं हमें साफ पानी दो। साफ पानी उनका मुल्क आपके ख़जाने में $ट्रिलियन डाल रहा है, फिर लोग क्या करें? आप बंदूक के जोर से मरवत आप गोलियाँ चला रहे हैं। पूरा ख़ानदान खड़ा था सियालकोट का 4 घंटे दरिया स्वात की उस पर, सारी दुनिया देख रही थी। आपके पास हेलीकॉप्टर नहीं था, अब आप बच्चों को मार रहे हैं, हेलीकॉप्टर आपके पास है, गड़बड़ कर रहे हैं आप। हेलीकॉप्टर कहाँ थे? क्यों आपने उन गरीबों को नहीं बचाया? और हम इतने बेहिस हो गए हैं, किसी इंसान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया कि भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ। 14-15 इंसान, बूढ़े औरतें थी, बहनें थी, माँ थी, सारे बह गए, किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और बस हम भूल गए उनको। इस तरह नहीं चलेगा। एक सियाफाम आदमी को अमेरिका में पुलिस ने कत्ल किया, सारा अमेरिका उमट पड़ा, सारा अमेरिका कि भाई अपने एक इंसान को कत्ल किया। और यहाँ ये होगा से नहीं चलेगा। सब बिस्मिल्लाह करें, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को एशिया की कौमों के दरमियान में बाइज़्ज़त मुल्क बनाना है। वो जमहूरियत से बनेगा, शराफत से बनेगा, दियानत से बनेगा। यहाँ क्या नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, दुख होता है। पाकिस्तान के तमाम इदारे फ्राम टॉप टू बॉटम करप्शन की वजह से बर्बाद हो चुके हैं। जुडिशरी, फौजी, सियासी जो भी हैं, मेहरबानी करें। मैं ये तो नहीं कहता कि फांसी दो, इस करप्शन से हम जानते नहीं हो। जब आप किसी के वो ख़रीदते हैं वफादारी, तो 17 करोड़ रुपया देते हैं उसको, और गरीब आदमी को सुबह शाम की रोटी के लिए ये नहीं चलेगा। लाखों